वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी काफी अहम है। Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amrit Kal. Viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 6 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो हर रोक दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को माना चमकता हुआ सितारा। सरकार ने दी इनकम टैक्स में छूट। छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कर दी गई 7 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के लिए दिए जाएंगे 35,581.44 करोड़ रुपए। नहीं की गई कोई बढ़ोतरी। लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए आवंटित। लद्दाख के बजट में भी नहीं किया गया कोई इजाफा। हिमाचल के बजट के लिए राज्य सचिवालय में होगी विधायक प्राथमिकता की बैठक। सीएम सुक्खू करेंगे अगुवाई, बताएंगे अपनी प्राथमिकताएं और सुझाव। और 2022 के कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक केस में हिमाचल सहित कई राज्यों में सीबीआई के छापे। हिमाचल में कांगड़ा, ऊना, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में हुई छापेमारी। और आपको सबसे पहले बता दें कि पीएम मोदी ने आम बजट को अमृतकाल का पहला बजट करार देते हुए कहा है कि इसे गांव, गरीब और किसान का बजट उन्होंने बताया। पीएम ने कहा कि यह बजट सपनों को पूरा करने वाला बजट है। पीएम ने बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं।
साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, कार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार, रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दूरी बनाएगा। संसद में आप बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ईस्ट पर फोकस है। The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh and the Northeast. This budget builds those efforts. और सरकार ने इनकम टैक्स में छूट दी है। छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर इसे 7 लाख तक कर दिया गया है। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all.
The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 20%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई है। The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiency and expand the market. Evacuation of power from renewable energy sources located in Ladakh to the rest of the country,
So those are four highlights which I'd like you to go back to see the scale in which we are approaching these issues and the impact that it will have on large sections of India's population. Then, of course, I gave 7 priorities, which began with talking about inclusive growth, investments in infrastructure, also reaching the last mile, so that those who are still left without a house or a sanitary facility or a road which is reaching them, and so on. So the last mile, reaching the last mile for those who desperately need that kind of a link are all being covered. Then we are also looking at a very futuristic fintech financial sector for which we have brought in some specific ideas. We are looking at also improving the industrialization of this country, where people will be trained for Industrial Revolution 4.0, which is going to be trained for AI, IoT, using Web3 in other words. So training manpower to ready themselves for industries which are rapidly becoming industrialized in the Web3 context. Then digital economy, unleashing the digital power of India in various walks of life, setting up an artificial intelligence research center, center for excellence. So all these are in part A. There's a lot of increase in the agriculture credit availability, 20 lakhs being made available for agriculture credit. Also a sub-scheme under the PM Matsya Sampada Yojana, making sure that people living in the coastal areas are going to benefit from it, fishermen are going to benefit from it. Now, if largely the Part A has looked at these, Part B has aimed at rationalizing the customs duties, also making sure personal income tax, after a very long time, has had substantial changes which will benefit the middle class. And also because this country has been waiting for direct taxation to be simplified, also waiting for direct taxation to be a lot more easy in compliance, and therefore the new taxation regime that we brought in for direct taxation 2-3 years ago has now got greater incentives, greater attraction, so that people can unhesitatingly move from the old to the new. Of course, we are not compelling anybody. Those who want to remain in old can still remain there for enough justifications that they can have. But the new one obviously is now attractive because it gives greater rebate. It also provides for a simplified and smaller slabs, lower rates of taxation, and also slabs which are nicely broken down. So with all this, I think the budget, I've not gone into specifics, but I thought as an opening remark, this much will be sufficient to say this is a budget which is beautifully balanced, both growth considerations, because the capital investment has never before seen double-digit investment announcements. 10 lakh crore, which includes 1.3 lakh crores being given to states, is going to give a big leg up for capital investment from government. So the balancing that I'm talking about is looking at public sector investments, continuing that good tradition of capital investment in infrastructure, and also attending to MSMEs, because they are the engine of growth. We've given them relief, we have also given them new access, we have extended and widened the emergency credit liquidity guarantee scheme, also given them their securities, 95% of it, even if they fail to deliver on contractual promises which were during the COVID pandemic. So the balancing is, one, we could sustain the capital infrastructure expenditure from the government, simultaneously in the private sector give a lot of push and impetus for the MSME, and not forgetting the individuals, the middle class individuals who needed that kind of a tax breaks and relief through taxation.
So the large macroeconomic considerations have also been kept in mind. The fiscal consolidation has not been kept in the back burner. We've attended to it. We are respecting the glide path we gave ourselves 2 budgets ago. 6.4 this year fiscal deficit, and the forthcoming year for which the budget is presented now, 5.9% fiscal deficit. So broadly, I leave it at this. I suppose when you ask questions, we can answer the rest. Thank you. Thank you for coming here today. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस को भी खिताब किया, और जो सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही है उसी बात को लेकर है कि जो इनकम टैक्स जो है उसकी जो सीमा है वो 5 लाख सालाना से बढ़ाकर उसे 7 लाख कर दिया गया है। और इसका मतलब ये होता है कि जो नई कर व्यवस्था है उसके मुताबिक अगर 3 से 6 लाख तक की किसी की आमदनी है इस बीच, तो उसे 5% का देना होगा, लेकिन चूंकि इसमें 7% तक की रिबेट है और उस वक्त फिर 6 से ना, उसकी डिटेल वहां बताई गई। और आगे भी उन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये काफी सुखद है। It doesn't also make the compliance a burdensome exercise. If rates are so low, you're going to benefit net by paying lesser tax. Even those exemptions that you would have otherwise gained from would have resulted in probably net amount being the same. So we made this a lot more attractive. But if there are people who still think that being in the exemption regime, which is the old regime, benefits them, they're welcome to continue where they want. But yes, the ultimate interest is to make the simpler regime more attractive. And that is why we've come up with this. Ma'am, firstly, many congratulations on the fiscal consolidation, because I keep asking you that question. But the issue today is about people in terms of, there is a big gamble in terms of capital expenditure. When you do that, does it actually trickle down to the people? Does it create jobs? I know you've been doing this for the last 2 years. Are you sure that this will really trigger off job creation, one, to, money in the hands of the poor people? The second, of course, is about inflation, which again, you, like last year, you haven't really touched about it, but you have had the letter from RBI. Your chief economic advisor yesterday says we are in uncertain times, but we hope that it will be under the check of 4 to 6%, hopefully the lower band of RBI. What is your answer to both these points? First of all, on the inflation, I think, yeah, you're right in saying RBI wrote a letter and what. But in the meanwhile, you've seen inflation come down, both the CPI and WPI. Action is being taken by the government. We take inflation-related steps as and when things develop in the ground in response to it. And that has borne result. So inflation is not something which we are looking the other way while it is changing up and down. We have kept attending to it, and as a result, you find the result. On fiscal consolidation, you asked me the question, and I've already explained that we have attended to it with all earnestness, having respected the glide path we gave ourselves earlier. Jobs. Yeah. See, first of all, I find it a bit odd you may want to ask this question like this. Capital expenditure. I would have appreciated if you asked me, you said something in the BE, but you have not really exhausted what you put forth. You have not really used it in the ground. It is unfulfilled in the sense targets have not achieved. I would have been happy to answer if that were to be the case. But you're asking me a question about, in the sense you are implying that we have fully utilized what has been kept for capital investment. Therefore, it makes me feel odd that you're asking a question of actually have jobs been created or not. When projects are undertaken and money is utilized, and that it is utilized is coming through from the budget statement, how would the projects get completed without manpower, without jobs? Not all projects can be completed, even 1%
without human intervention. So obviously jobs are happening in the ground. So Ma'am, I want to ask you, ma'am here. Ma'am, I want to ask you what percentage of taxpayers had moved to the new tax regime in the last assessment year? And is there a number that you expect, 50%, 60%, whatever? And number two, ma'am, there's a specific mention for expenditure towards MSMEs. Now, is there an estimate of how much, what was the dues that companies had claimed as expenditure and which has not actually been paid to the MSMEs? Sanjay, you want to answer on? On your second question, that is on the MSMEs, well, we don't have that data. Certainly, we don't have that data. And it's not, I mean, we don't take that data from the taxpayers in their returns, so that data we will not have. But certainly, we are all aware of this huge problem of timely payments not being made to the MSMEs. So in that direction, this is certainly a positive step. Coming to your first question on the exemption-less regime, let me say that for companies, the 22% tax regime that we got, 61% of our tax now, the corporate tax, more than 60% is actually coming from the exemption-free tax regime. Individuals' data we will not have, but we are very hopeful that this particular scheme for individual taxpayers, the PIT, I think the majority would prefer, I mean, all of you, if you all do your own calculations, I think majority here would be now wanting to shift irrespective of their incomes and the deductions and exemptions that they claim. They would be finding it more attractive to shift to the new tax regime, majority of them. Ma'am, very good afternoon. Congratulations on a great budget. It's very clean, simple, nicely done. Ma'am, one quick question on capex and one more on petroleum subsidy. Ma'am, your capex for RE is lower actually in terms of the spend as of now. But the target is, greatly stepped up for FY24. So what gives the confidence that it will be all utilized? That capex RE is lower, ma'am. 7.28 versus slightly lower, and a big one jump for FY24. So what gives the government the confidence that all of it is going to be utilized and well spent? That's one, ma'am. And second, ma'am, on the petroleum front, the LPG subsidy has been kept pretty low. You had announced certain additional measures last year in May, along with the deep cuts in excise on petrol, diesel. So what happens to those announcements regarding LPG subsidy? They have not been rolled over. And plus, ma'am, there is a demand coming in from oil cores now after LPG losses that you have made good by giving them money, that something needs to be done on fuel also. So would the government consider? The last bit, something has to be done for who? Basically, demand coming in from oil in terms of... oil marketing companies. Yes, cash compensation. The money which is now being given is not for that. Not for that, ma'am. So, all of it. So, on your first question on capital expenditure. So, yes, the revised estimates are about 97% or 98% of the budget estimate. Yes, there is a slight deviation. It's mainly on the state capital expenditure, which is falling short of the 1 lakh crore. Actually, the central capital expenditure is going to exceed the budget estimates. State capital expenditure is not expected to reach the 1 lakh crore figure because some portions of the state capital investment scheme have reform conditions. So some states have not been able to meet some of the conditions. Therefore, we expect, I think the figures are there, about 76% of the state capital expenditure scheme is likely to be spent. That's the revised estimate. So the shortfall is actually on the state side, not on the central side. Point number one. What gives you the confidence for next year? I think if you look at the allocations that have been made, they've made in actually the increments are in 4 clear areas. One, railways.
The railways has enough projects to absorb the additional capital expenditure. The second is highways. They have adequate projects running to 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. standards and pollution standards, and partly for augmenting our strategic reserves. So these, I'm quite confident that we meet the expenditure targets. Please. तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस. मैम, जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो 65,000 से 50,000 किया है और नेक्स्ट ईयर का 51,000 किया है. तो मैम, इससे हम ये समझें कि जो दो गवर्नमेंट बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन होना था और जो दो इंश्योरेंस कंपनीज का जो प्राइवेटाइजेशन होना था वो अब 2024 के बाद ही संभव हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैम जो टारगेट ये कर रहे हैं. दूसरा सवाल मेरा संजय सर से है. जैसा कि आपको विदित है कि डिसइन्वेस्टमेंट तो मार्केट कंडीशंस और कई चीज़ों से निर्भर करता है, तो उस हिसाब से जो प्रैक्टिकल और प्रूडेंट टारगेट है वो रखा गया है. Ma'am, I am Monica from the New Indian Express. Ma'am, what was the need to lower effective tax rate for high income group at this point in time? And also tax collection at source has been increased from 5% to 20% on overseas tour package. So what is the reason behind this massive increase? See, the tour packages are generally taken by people whose effective tax rate is certainly more than 30%. So if we are charging them 20% TDS, I don't think it is high. We have, our attempt always has been to charge TDS at more or less similar rates, if not exactly the same rates. So that answers your question number one. Question number two on, I think you are referring perhaps to surcharge, which has been reduced. Well, our rates, the highest tax rates in our country were amongst the highest, even more than, some of the developed countries. And so, in any case, it was introduced as an interim measure, and so that has now been reduced, so that the effective tax rate, highest effective tax rate becomes 39%. I'd just like to supplement that. There is a consistent theme, if you see, both on the new tax regime and on the changes that you're seeing in this budget, that the move is towards lower rates, but fewer avoidance measures and exemptions. So if you look at high net worth individuals, there are a number of tax avoidance removal measures in this budget, along with the reduction in surcharge. So if you look at market-linked debentures, if you look at very high value insurance policies, and a few other measures. So the marginal rate is coming down, but some of the devices used predominantly by those in that highest marginal tax rate are also being rationalized. So it's not necessarily a net reduction, it is a reduction from a high marginal rate inducing certain avoidance devices to a lower marginal rate with fewer opportunities to avoid. 74, please. Sixteen channel.
ब्रेक पे आपका स्वागत है। आप देख रहे थे जो अभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें सवालात के जवाबात दिए जा रहे थे कि किस तरह के इसमें जो स्लैब्स हैं या उनकी और प्रोविजंस हैं, तो ये सिलसिला भी चलता रहेगा। फिलहाल एक और आपको खबर दे दें कि एजुकेशन सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान आज के बजट भाषण में किया गया है। वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए ऐलान करते हुए कहा है कि देश में शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए नए प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा देश में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs
and the Department of Development of Northeast Region. To provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile, our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development and basic infrastructure. और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी और मैं इसे पूरी तरह से नकारात्मक बजट नहीं कहूंगा। थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे नकार नहीं सकता, लेकिन इस पर कई सवाल भी उठते हैं। शशि थरूर ने कहा कि बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था, सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है, बेरोजगारी महंगाई की बात भी नहीं की गई है। मनरेगा का नाम भी नहीं लिया। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना, एक लफ्ज नहीं सुन सका। और महंगाई, आप टैक्स रिबेट के बारे में कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब लोगों के जेब में ज़्यादा पैसे हैं उसका मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा जाके खर्च करे हर रोज़ की एसेंशियल चीज़ों के लिए। तो मेरे ख्याल में सोचने लायक है इनमें चीज़ें, लेकिन मैं तुरंत नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे प्रश्न बहुत है। अच्छा, पूरे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, उसके बाद हम अच्छी चीज़ें भी कह रहे थे आप। अच्छी चीज़ें क्या लगी सर? देखिए, लेखक के रूप में मैं बताया कि ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात है कि लंबाई ज़रा कम की उसने, 1.5 घंटे के अंदर सब खत्म किया, ये भी अच्छा है। ज़्यादा शायरी नहीं सुनाए नहीं, लेकिन बात देखिए, दूसरी चीज़ें टैक्स रिलीफ तो अच्छी बात है। और छोटी छोटी चीज़ों में मेरे ख्याल में सरकार की उद्देश्य, लेकिन प्रॉब्लम ये सरकार के हर वक्त होते हैं कि अच्छी तरह गोल बनाते हैं लेकिन गोल वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो 1 साल के बाद पूछे कि इस बजट कैसे चले। और विपक्षी दलों ने बजट को चुनावी बजट करार देते हुए कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और इसे घुमा फिराकर पेश किया गया है। तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट इस सरकार का आखिरी बजट है। सिन्हा ने कहा कि सरकार ने पुरानी योजनाओं को ही घुमा फिराकर नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। आपको कहते हैं पूर्णतः संपूर्ण रूप से देखना पड़ेगा पूरे बजट को। इस बजट में आपको देखना पड़ेगा कि आपने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए डीजल का दाम इतना बढ़ा है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा है, डॉलर कहाँ से चला गया, रुपये का दाम कितना गिरा है, इन सारी चीज़ों पे क्या आपने फोकस डाला? इन चीज़ों की कोई बातें बताई आपने, कोई पॉलिसी बताई आपने बताया कि देश के ऊपर इतना कर्जा है, अभी 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की बात तो अभी हुई किसी बजट में। इतना टोटल कर्जा है, उस कर्जे को कैसे घटाएंगे, कैसे कम करेंगे, क्या क्या रास्ते होंगे? आपने एक तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए हमारे लिए किया, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपने जो हाईएस्ट स्लैब जो था उसको इतना नीचे कर दिया आपने कि कई लोगों को शक हो गया कि कहीं खास लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं हो रहा है, हम दो हमारे दो के लिए नहीं हो रहा है, हमारे दोस्तों की भाषा में। तो ये बहुत सारी बातें हुई हैं, आपको देखना होगा। आप अपने किसानों को छोड़कर, अपने युवा वर्ग को छोड़कर, अपने बेरोजगारों को छोड़कर, महिलाओं का साथ ना देते हुए इस तरह नहीं निकल सकते। या सिर्फ पेज पे चर्चा करने से नहीं होगा। लेकिन और बीजेपी लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर, सशक्त, समर्थ भारत के सफल सफर का हमसफर है। नकवी ने बजट को किसानों के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का नतीजा है कि आज देश तमाम संकटों के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है। आज एक तरफ तो दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ भारत बैशिंग ब्रिगेड की बकवास बहादुरी चल रही है। पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ता हुआ और बकवास बहादुरी को परास्त करता हुआ
देश के विकास, देश के समावेशी विकास, देश के सर्वस्पर्शी विकास, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत और खलिहान के सरोकार को समर्पित ये बजट है। ये बजट ही नहीं है बल्कि देश के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का गजट है। और नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का ये नतीजा है कि आज देश तमाम तरह के संकटों और कंटकों के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाए वो लोग जो लोग किए चाहते थे। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आम बजट की तारीफ की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है, सबको कुछ न कुछ दिया गया है। बजट है और उसमें खास क्या है? इलामत मिडिल क्लास को भी मदद है। अरे भैया फोटो बाद में हर तरफ से कोई ना कुछ दिया गया है। फिर उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। और कुछ खास आप बजट के बारे में बताना चाहिए? मैं कहूँगा मुबारक हो इसको। 1.5 घंटा हमने अच्छी तरह से सुना और हमने अब हम इस पर बात करेंगे जब मौका आएगा बोलने का, उस वक्त हमारी बात सुनेंगे आपके। हम बजट के बारे में कह रहे हैं। ऐसे आपके ओपिनियन में कितना नंबर देंगे बजट को? मैं नंबर नहीं जानता, मुझे नंबर पता ही नहीं। नंबर होती क्या चीज़ है मैं नहीं जानता। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को विधानसभा चुनावों से जोड़कर बताया है। उन्होंने कहा कि चुनावों को देखते हुए बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट नहीं है बल्कि इलेक्शन स्पीच है। उनकी जो भी बातें उन्होंने बाहर कही हैं वैसे जुमले इस बजट में डालकर इसका पुनरुच्चार किया जाए। देखिए, ये तो बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं। और उनकी जो बातें बाहर उन्होंने कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। और दूसरी चीज, बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। और जो आज अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की बात उन्होंने नहीं कही। हालांकि पहले तो उन्होंने ही कहा था कि हमने हर साल 2 करोड़ नौकरियां हमारे युवाओं को देंगे। तो उनके 18 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? उसके लिए कौन सा बजट है? तीसरा, जो सरकारी वैकेंसीज है वो भरने के लिए भी उन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा। और जो 30 लाख वैकेंसीज भरना है उसके लिए तो बजट का प्रावधान होना चाहिए, वो भी इसमें नहीं है। उसके अलावा गरीबों के लिए जो हमेशा पहले से आता था, उनको जरा नरेगा के लिए जरा वो बहुत ही पॉपुलर स्कीम रहने की वजह से रूरल के हमारे किसान मजदूर को उसका लाभ होता है। उसके लिए उन्होंने इसको बहुत अलग दृष्टि से देखा था। लेकिन आज के बजट में पहले जो 90,000 करोड़ था, 90,000 करोड़, उसको घटाकर उन्होंने 60,000 करोड़ कर दिया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी से निपटने के लिए बजट में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट के प्रस्ताव को आम जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया। इस बजट को कांग्रेस कैसे देखती है? जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा हैं हमारे साथ। शर्मा साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज बजट पेश किया गया, कैसे देखती कांग्रेस इस बजट को? देखिए, कुल मिलाकर के तो निराशाजनक ही है। सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने महंगाई की है, दूसरी बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है। लेकिन इस बजट में ऐसा कोई बड़ा प्रावधान नहीं नजर आता जिससे महंगाई पे काबू होगा। और आम आदमी, जो गरीब आदमी है, हम उसके बारे में ज्यादा चिंतित हैं कि जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता, उसके लिए कोई राहत नजर नहीं आई। मास वाइज चंद चीजों पे ड्यूटी कम करना, उनसे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगार लोगों के लिए 2 करोड़ का वादा मोदी सरकार ने किया था 2014 से, लेकिन उसमें भी सिर्फ 47 लाख नौजवानों को स्टाइपेंड देने की बात हुई है। इसका मतलब रोजगार नहीं है और रोजगार बढ़ाने का कोई बड़ा पहलू उसमें नजर नहीं आता और महंगाई कोई ऐसी राहत नजर नहीं आती। टूरिज्म की बात की गई, उसमें यह कहा गया कि जो टूरिज्म है एक नया ऐप लॉन्च किया जाएगा। जम्मू कश्मीर अगर देखेंगे, ये टूरिज्म के लिए माना जाता है और टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे लाखों लोगों का रोजगार उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको बेनिफिट तो होगा। आप कैसे ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास नहीं? देखिए, जम्मू कश्मीर फोकस्ड कुछ खास नहीं है, ये तो सारे देश के लिए। वो तो ऐप लॉन्च होगा। जम्मू कश्मीर को तो वैसे ही जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर अमन शांति हो तो यहाँ खुदा खुद टूरिस्ट आता है, यात्री आता है। लेकिन सबसे बड़ा जो आंकड़ा गिना जाता है, जब टूरिज्म का आंकड़ा गिना जाता है, आजकल धार्मिक यात्रा को भी पिलग्रिमेज टूरिज्म कहा जाता है। वैष्णो माता के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। फिर बाबा अमरनाथ जी के लिए 5-6 लाख लोग हर साल आते हैं। इसी तरह से और कुछ यात्री आते हैं। वो मिला करके आंकड़े बताए जाते हैं कि टूरिज्म बहुत बढ़ गया जम्मू कश्मीर में। टूरिज्म शांति होगी, अमन होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। जम्मू सूबे में इतने टूरिज्म के स्कोप हैं, बहुत बड़ी जगह है, लेकिन वहाँ कोई क्रिएट नहीं करता। कोई बॉर्डर टूरिज्म है, कहीं और किसी कोई समर टूरिज्म है, कोई विंटर टूरिज्म है, तो मगर वो तो दिखता नहीं। जब तक ऐप लॉन्च करने से होगा कि भाई आप वहाँ जाइए, ये वहाँ है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हम देख रहे हैं जैसे शिवखोड़ी है और कई श्राइन्स हैं, हमारा बुढ़ा अमरनाथ तक है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से धार्मिक जो पिलग्रिमेज है, छोटे छोटे स्थान है, वो भी एक टूरिज्म का हिस्सा है, लोगों की इकानमी बनती है, लेकिन उस पर कोई पैसा खर्च ना हुआ है और ना होता है। इसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर का साधन हो सकता है, लेकिन फंड्स तो उसके लिए नहीं रखा। फिर ऐप लॉन्च करने से क्या होगा? मैं नहीं मानता उससे जम्मू कश्मीर का भला होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत सी कनेक्टिविटी के साधन हैं, बहुत से प्रमोशन ऑफ जो रेलवे हैं, पुंछ तक रेलवे लाइन का हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंची। इस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत से चीजें जो यूपीए ने शुरू की थी वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उस तेजी से काम नहीं हो रहा और उसमें कोई पैसा नहीं रखा गया। बहुत बड़ी राहत यहाँ के डेली वेजेस, नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए लोग जो काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, वर्कर्स, जो बहुत बड़ा एक ह्यूमन रिसोर्स है, उसके लिए कुछ नहीं रखा गया। उनके पक्के करने का साधन, उनके इनकम बढ़ाने का साधन, उनकी सैलरी और वेजेस को बढ़ाने का साधन, वो जो सेक्टर है वो हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त है और उसकी वजह से जो लोग जिनको थोड़ा बहुत साधन कहीं रोजगार का मिला है, उनके लिए कोई राहत नहीं दी गई सेंटर बजट में, और ना ही मैं समझता हूं उसकी तरफ गवर्नमेंट सरकार का कोई ध्यान है कि वो सफरिंग सेक्शन जो हैं, जो कि सड़कों पे हैं, उनके लिए कोई राहत हो। थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा, जिनका ये कहना है कि बजट में इतना कुछ खास नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। हालांकि हमने उनसे ये भी पूछा था कि जो टूरिज्म के बारे में जो कुछ बातें की गई हैं, एमएसएमईज के बारे में जो बातें की गई हैं, लेकिन कांग्रेस को शायद अभी भी ये लगता है कि जितना कुछ बजट में गया है वो कम है। कैमरामैन बंटी के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।
और वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बजट जनहितैषी नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण योजनाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये बजट बड़े कारोबारियों के लिए है। वही बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसपे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जो इनके कुछ क्रोनी कैपिटल्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए सारा टैक्स जमा किया जा रहा है। आवाम को फायदा देने के बजाय जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है। इस वक्त ये 8वां या 9वां बजट है इनका, और हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे वो फिर नीचे चले गए हैं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हो, वो भी कम कर दिया, वो आप 4 किलो दे रहे हो। यानी आपने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़, वो तो नहीं दे रहे हो, पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। तो ये बजट कुछ बिजनेसमैन के लिए बजट बनाया जाता है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ बड़े लोगों के लिए। और जहां तक लैंड का सवाल है, जो यहाँ पर मुझे ये बताइए, गवर्नर हाउस वो कहाँ पर है, बीबी कैंट वो कहाँ पर है? अगर ये कहते हैं कि हम बड़े लोगों से शुरू करें तो फिर गवर्नर हाउस से शुरू करें, बीबी कैंट से शुरू करें, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि बजट एक सुनियोजित और दीर्घकालिक है और ये बजट आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में हर समाज का ख्याल रखा गया है। पार्लियामेंट में आज बजट पेश किया गया, इस पर जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज बजट पेश किया गया, किस तरह का बजट देखते हैं आप? मैंने पूरा बजट देखा है। मुश्किल तरीन हालात जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के बाद आर्थिक मंदी है, उस दौर के बीच में बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुल्क की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। सबसे अच्छी बात यह है कि मुल्क के अंदर रहने वाले 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन कोरोना काल में शुरू हुआ था वो 2024 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गांव-गांव के अंदर जो बनने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान हैं, उसके लिए लगभग 80,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। मुल्क में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस का निर्माण होगा। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, रूरल कनेक्टिविटी को तवज्जो दी गई है। रूरल डेवलपमेंट जो गांव-गांव में पंचायती राज सशक्तिकरण के माध्यम से काम हो रहे हैं, उनमें काफी फंड्स जो है वो दिए गए हैं। और वहीं और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। और 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नाजरीन आदाब तो वुचान प्रोग्राम पेज पे यथ प्रोग्रामस मज अलग अलग मौजून पे कत बात करान रात कर कत कि बजटस मज क्या क्या उम्मीद लूकन हज लूक क्या यसान कि यह बजट क्युत गि आज गो बजट पेश तो आज करो कत कि यह बजट अत मज यम चीज वन आय यम चीज ब्रोह कुन आय तथ पे क्या सियासी जमातन हूं रद्द अमल गोड करो कत कि मोच मोच कथ अत बजटस मज वन आय यह बजट पेश करना आज निर्मला सीतारमन दस तथ मज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तथ पे ज्यादा जोर दिन यानी मुल्कस मज सड़क फ्लाईओवर्स पोर्ट एयरपोर्ट बनाने कनेक्टिविटी लूख शहर तो गाम रलावन ताकि गामन हज तरक्की सपदी यकीनी अमे अलाव अत पे थ्रस्ट आव सह कि गरीब कल्याण योजना कोरोना वबा दौरान शुरू आमज कर गरीबन फ्री राशन दिन सह गई बे अक वरी खतर एक्सटेंड अमे अलाव आव अत मन कि स्किल डेवलपमेंट तम खतर बे इंस्टीट्यूट खोलने तो सन नौजवान तिम बन हुनरमंद तो तिम हेकन पन रोजगार कमावित मीडियम तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तम खतर त बजटस मज खास तवज्जो दिन आमुत तो अथ सम नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग कॉलेज वो कि तिम तजा बे बढ़ाने तो यी तरबियत दिन यह बजट क्युत अत पे क्या सियासी जमात वन तथ खतर जुड़न अस खास 3 मेहमान अस वनकस जुड़ित नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद अस जुड़न भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर सुरेंद्र अंबादार तिमन करो अत पे कत तो बे दावत दिम फिरदौस नबी स्पोक्स पर्सन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हिंद गोडनियत कर बह शुरुआत शेख बशीर अहमद नश बशीर साहब तुम वन आज बजट पेश आव कर तुह क्या बासान क्युत बजट बशीर साहब मे अर्ज ये तुम वजाहत करू कि बजट इस रात आज पेश गो अत बजट सतन लुकन उम्मीद क्या लुक उम्मीद थावन कि गैस ग सस्त लुक उम्मीद थावन कि पेट्रोल तो डीजल ग सस्त लुक उम्मीद थावन कि स्कीम इन ब्रोट यम गरीब लुकन अपलिफ्ट करें लुकन ये उम्मीद कि यस द्रजर यह कम करने मेजर्स करने मगर इस बजट पेश गो
सताजी ब्राद योत बजट पेश गो तथ मज वन इंफ्रास्ट्रक्चर युस इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 तान तथ मज ज्यादा अजाफ गोमुत कह युस वनकस मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर सह वनकस आउटसोर्स करना लिहाजा यथ मज बजटस अंदर नौ चीज कह बे वन बह ब्या चीज पन्नस सिस्टमस अंदर कि हाल ही मज पत्म वरी सुप्रीम कोर्टन वोनमुत सुप्रीम कोर्टन वोनमुत यथ मज उम्मीद कि ये इकनॉमिकली वीकर सेक्शन तथ स्लैब थमस दिमो 8 लाख अगर 8 लाख तान इकनॉमिकली वीक आसि तो 3 लक्षन पे क्या तुम टैक्स रटन तो 3 लक्षन पे टैक्स थावन उम्मीद कर कि अत मज सुप्रीम कोर्टन तक शायद मदाखलत कर मुमकिन गवर्नमेंट यस बजट अन अत मज कह तुथ प्रोविजन टैक्स लुकन टैक्स लुक दिवान सह लुकन पोस मगर तुह बूजमुत पतमन 10-15 दहन अंदर गो ब्या तमाशे कि गवर्नमेंटन डेवलप कोर पतमन 8 वरियन अंदर कोरुख अडानी कोरुख अंबानी तो अक्सी रात अंदर गो लक्ष बोध करोड़न नुकसान सारी परेशान लिहाजा मे खबर वह पार्लियामेंटस अंदर के साथ बहस लिहाजा यस यह बजट वनकस अत मज नौ चीज कह हाँ वन अस करो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ अत इंफ्रास्ट्रक्चर सह वैसे बनान ठीक आज तान बनान सड़क बनावन कदल त बनान रिमोट एरिया अंदर पकान सिस्टमा यह क्या नौ चीज दपान दिमो ज्यादा अत पे थ्रस्ट मगर आम इंसान सह तवक्का यह थावन कि गैस कित पे गस सस्त डीजल पेट्रोल कित पे गस सस्त तमी सतन गसन आस्ता आस्ता बाकी चीज सस्त इस वह राशन 2019 अंदर आयो यह सा यह क्या नाव कोविड-19 तम सतन गो नुकसान गो मगर सवाल कि तथ कर गवर्नमेंटन तम वक्त मार्केटिंग तथ मज तमो सठा लुकन नुकसान मगर दपान वह चूंकि वह गो सह मकलो वनकस कर हर कह तवक्का थावन कि द्रजर कित पे गस कम अजकिस बजटस अंदर द्रजर कम कर मेजर बे बाकी चीज सारी वाह वाह तमाश तम लुको वुचमित तथ मज नौ चीज कह मगर बशीर साहब तुम वन कि द्रजर गो कह या सही ब्या बड़ प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तथ मज मेजर्स तथ मज वोनुक यह कि 27 लाख बेरोजगार नौजवान तिमन स्टाइपेंड दिन 3 वरियन खतर या मीडियम to स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तथ पे थ्रस्ट स्टार्टअप्स नुकसान गो अत प्रोविजन थवन आमुत अहन मारा वन तो चीज कि गो ये गवर्नमेंट अपजिस पे भरोस थवन अपजिस पे पकान वस तान यमो वया यम सात यमो गवर्नमेंट चाहे यमो वया तम वक्त कि अस करो अकिस वरियस अंदर यीत्या नौजवान करो रिक्रूट पॉलिसी बनाए यमो मगर सह कोरुख न कह यम सात यह गवर्नमेंट बने तो याद कि इलेक्शन मैनिफेस्टोस अंदर वोन यमो कि गैस द्रुज पेट्रोल डीजल द्रुज अनो तथ दिचाव यमो नाव अच्छे दिन आएंगे तो लुक तथ इंतजार कर तम अच्छे वह दपान लुक है वही बख्शतो तम पुरानी दो ठीक क्या वनकस गैस 62 रुपये डीजल पेट्रोल गो 100 रुपये लगभग लिहाजा यम चीज एक्सकलेट कर ब्या चीज कि यमन वरियन अंदर अगर कह चीज वन में यमो कर सारी चीज आउटसोर्स कर मतलब गो कि मार्केटस अंदर एम्प्लॉयमेंट गई कम वह 2 हाउसेज हाँ वन बशीर साहब तुम वो कि LPG तमिक दाम गो कम कह तम बराबर लगातार पेट्रोल डीजल तमिक मुतलिक वन आमुत कह अमुक कीमत क्या गस कम यह सवाल पुछो रविंदर रैनास तो कुछ हदस तान तुंद वन तो सही कि अगर ओवरऑल वो यूक्रेन जंग गो या
वुनकस स्लो इकोनॉमिक स्लो डाउन अक्रॉस द ग्लोब तथ मज जायन यह प्रॉब्लम वुनकस अगर वो कि यूत रिसेशन तम हिसाब इकोनॉमी फिगर्स ब्रो कुन दपान कि GDP सो लगभग 7% तान रोज सह ब्रो कुन गो कि कह मेजर्स तिम सन इकोनॉमी वुनकस दरित अगर बाकी मुल्कन सगर कंपेयर करो तो तम मतलब गो कि जान मेजर्स आय डिस्पाइट कोविड या बाकी दुनिया मज हालात गई। मनोज जी कमिस तो एड्रेस करा बशीर साहब और वो बशीर साहब से जी आवाज नहीं मिल रही तमें दुत अदानी तो अंबानी सुन नाव मेरा क्या यार सुरेंद्र अंबारदार सुरेंद्र अंबारदार जन यमो शेख बशीर वन कि यह सरकार अफजु वन कर कर कहो वो ब्रो यीचा नौकरी पे करो मगर तुम हेकुक न कर तुम क्या वन मनोज जी बेसिकली ये बजट वुचन दोन पस मंजर मज कि इकोनॉमिक रिसेशन गो थ्रू आउट वर्ल्ड because of the COVID-19 दोयम कि रशिया यूक्रेन वार यथ मज वारियान चीजन हज सप्लाई चेन सह ब्रेक गम सह ब्लॉक गम तम पे कंपेरेटिव एनालिसिस कर सरसी दुनिया सत कि आज जन नेबरिंग स्टेट तिहज इकोनॉमिक हालत क्या तम पस मंजर पे वुचन कि अजुक बजट यह इनोवेटिव बजट अत इनोवेटिव बजट मज फोकस सह नाव थोमुत विजन फॉर अमृत काल अत अमृत कालस मज यूथ अपॉर्चुनिटीज खतर स्पेशली स्पेशल पैकेज आम थान यथ मज ग्रोथ जॉब क्रिएशन यथ मज सठा इम्पार्टेंट फीचर कि यथ स्किल्स तो राइट तुम वो कि माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक सह गई डील यह अजुक बजट अत मज 7 स्पेशल फीचर्स या 7 रेशी वन कि अत मो वोनमुत कि करो इनक्लूसिव डेवलपमेंट करो रीचिंग टू द लास्ट माइल यमो वोनमुत इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन्वेस्टमेंट गई सठा ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे यमो वोन कि यूथ पावर बड़ इम्पार्टेंट फोकस कोर्मुत कि लगभग 50 लक्षन यूथन स्पेशल पैकेज यी दिन तो तम अलाव माइक्रो इंडस्ट्रीज माइक्रो तथ मज यूथन इन्वॉल्वमेंट सारे खुद इम्पार्टेंट तुम वुचन कि सह पोटेंशियल इंडिजिनस पोटेंशियल तम अनलीश कर ग्रीन ग्रोथ नो फीचर वो कि फाइनेंशियल सेक्टर्स वम तम क्या मज इनकम टैक्स स्लैब तुम मोर इम्पार्टेंट कि हिंदुस्तान एग्रीकल्चर स्टेट एग्रीकल्चर स्टेट्स मज यमो ह्यूज बजट थो एग्रीकल्चर सेक्टरस मज तथ मज आव यह चीज वन कि स्मॉल तो मार्जिनल फार्मर्स तिम हसा 3 लाख रुपये यथ मज 2% सब्सिडी एज एट ए मिनिमम 7% टैक्सेस पे इंटरेस्ट यम सारी फीचर्स वन कि डेवलपिंग स्टेट सह हे हर विज 1950 मज कहें कि हेको कंसेशनिस्ट माइंड सेट हेत यह मुल्क चल आज डेवलपिंग स्टेट डेवलपिंग स्टेट्स मज वो कि हर विज करो कंसेशनल प्रीमियम पे कत यह मुल्क खुद कफीली कुन पकान अत खुद कफीली मज सेल्फ रिलायंस मज नव इनिशिएटिव्स एंटिसिपेट कर पे इकोनॉमिक स्ट्रेंथन गो तो सारे खुद बोड़ फीचर यह आज मेन हिसाब COVID-19 तूत इन्फ्लुएंस तो इम्पैक्ट कह यूत जन 2019 तम पे सरकारन यह घोषणा यह डिक्लेरेशन कि यम पोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तिमन हसा थो राशन कंटिन्यू मे बासान यम सारी होलिस्टिक व्यू बजट यह फिनोमिनल बजट इनोवेटिव बजट मनोज जी बशीर साहब मैं बोझ सॉरी यहाँ मैं बोझ मैं बोझ नहीं
बुझो बुझो मैं बूझ नहीं ज्यादा कह ते अलबत्ता क्या मज गो कनेक्शन खत्म मगर बह वन तुम अख चीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे थ्रस्ट यह मोड़ कह मगर मसल कि द्रोजरस पे कत कर कह कि द्रोजर द्रोजर कित पे द्रोजर क्या कंट्रोल गसान तथ वन दपान ठीक है टर्मिनोलॉजीज तम कर तथ पे मेडल दिन मगर तम सिर्फ टर्मिनोलॉजी कर मे वो तुम सोद चीज कि अगर तुम इकनॉमिकली वीकर सेक्शन थो 8 लक्षन ताम तो 3 लक्षन पे क्या तुम टैक्स रटान सह क्या वजह अगर तुम पाने वन तुम सुप्रीम कोर्टस वोनमुत कि अस थोमुत इकनॉमिकली वीकर सेक्शन थो 8 लक्षन तम तम इकनॉमिकली वीक तो 3 लक्षन पे क्या तुम टैक्स थवन नंबर 1 बे तुम चीज कर सोरे ओतर फ्रॉड गई यथ मज अडानियस 7 लाख करोड़ रुपये गो अकी रोज अंदर सह तम सुंद पोस सह लुकन मोद पोस LI सुंद पोस बाकी लुकन मोद पोस तथ पे तवज्जो दिवन कि सह कित गो बे ब्या चीज वनो वो तुम बह 2014 पे आज 2014 पे आज महंगाई ग्राफ अगर इन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर दलील पता कि जम्मू कश्मीर FPS स्कैम दुबार तुह नश दुबार तुह नश फिरदौस नबी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी तिम वन मौके फिरदौस नबी तुहज क्या रिएक्शन बजट पेश कर क्या डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी वन अथ बजटस मुतलिक फिरदौस नबी जनाब शुक्रिया वन आज गई अमिच अनाउंसमेंट बजट बहरहाल बजट जरूरी बनाउन लुकन खतर और पेश कर जरूरी तो यह हर साल यह बजट पेश कर मगर मे सवाल टैक्स कलेक्शन गसान सरकारस यीचा तम पूरे हिंदुस्तान मज टैक्स कलेक्शन करान मे खदशक बहसीत नौजवान बहसीत नौजवान रहनुमा लुकन हूं या डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हूं नुमाइंद बहुत यह सवाल कर सरकार टैक्स सह प्रॉपर यूज गसान कह तुम कूता टैक्स बजट अनान फी वरी लगान यह पता कि वन हसा गो बेहतरीन वन आव बजट असल और यह टैक्स यह कलेक्शन गम या टैक्स यूज यह हसा वात आम लुक गसन व शायद वन यह सा यह खुशहाल मगर ये वुचान टैक्स वनकस आज टैक्स यह आव यह पेश कर बजट आव पेश कर टैक्स पॉलिसी आई पेश कर अत मे सवाल कि यमो थो 3 लाख पे हसा करो टैक्स यानी 50,000 रुपये ओतान 2.5 लाख वो कोर 3 लाख मगर सवाल यह कि क्या यह दस्तकार सोन पूरे हिंदुस्तान मज अथ सत बनावान शॉल बनावान कालीन बनावान बाकी अथ काम करान या लकट यम एंटरप्रेन्योर्स यम शुरुआत यम स्टार्टअप तो यमन टैक्स तूफान यानी यथ मज दवान सरकार सरकार स्कीम दिस PMEGP प्रधानमंत्री ग्राम एम्प्लॉयमेंट ग्राम योजना तो सो PMEGP मज यमो टैक्स लगोमुत नौजवान यमिस वन विदाउट गारंटी हसा दिमो अमिस कह यूनिट हसा खड़ा कर तथ टैक्स लगान मतलब नौजवान कह शुरू कर खुद मुख्तार बन रोजगार सरकार नश कह मगर रोजगार पॉलिसी तिमन पे जबरदस्त टैक्स अच्छा अम पे दोम किसान बैक बोन हिंदुस्तान यम हिंदुस्तान मतलब यमिस अन्नदाता वन तमिस खतर क्या अत मज रियायत मे आई वन तान यीत्या टैक्स मे वन तान लाइव यह सा यह प्रोग्राम्स वुचा ऑनरेबल सीतारमन साहिबा तो तम पत्म लट बजट पत्म लट पेश कोर तम सात वो तमो किसान खतर हसा दिमो रियायत मगर ये वुचान जमीनी सतह पे महंगाई ज्यादा और गुर्बत ज्यादा
बेरोजगारी ज्यादा मगर सरकार वन योत वाद करान वन कागजी तौरस मज मगर अमली तौरस मज नजर दिवान अमली तौरस मज सरकार जमीन पे फेल नजर तो मोन युत बह वन अत बजटस मुतलिक मे बजटस हाँ जनाब वनकस वक्त अ ब्रेक वो ब्रेक तम पे करो बे अत मौजूस पे तफसील सान कत बात गोड़ ये ब्रेक। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67. ब्रेक पचु बे तुम्हार तुम खैर मकदम तो ब्रेक पे गो ब्रो ये जन सुरेंद्र अम्बादार वन शेख बशीर अहमद तो सुरेंद्र अम्बादार कत करान तो अत दौरान वोन कि सुरेंद्र अम्बादार तमो वोन शेख बशीर अहमदस बशीर साहब तुहद यह सवाल तुह खतर अम्बादार साहब वनान कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नश वन खतर कहें बजटस पे डिस्कशन कर कि बजटस मज क्या जान तो क्या नाकार बल्कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करान बशीर साहब बुझ मारा तुम बह दिम मे बोज न अंबरदार सबन कह मगर बह वन तुम अख चीज यह अपुज कि यम सात 2014 संदर 2014 संदर यम सात बीजेपी आई तिमो कर प्रोटेस्ट सड़कन पे कि गैस तो डीजल द्रुग यह अपुज। अच्छा यम सात तिम आय तिमो लोड ब्याख इलेक्शन 2019 मज तम सात तत पे बात कर आज तेस लुक मे वन तुम सिंपल कि टैक्स लागुन ठीक मगर तुम ये पाने वनान कि यह सा 8 लक्षन तक वीकर सेक्शन यह अपुज वन कह यह बशीर अहमद वन कह यह वनान यह रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्टस अंदर कि 8 लक्षन तक स्लैब मगर टैक्स तुम 3 लक्षन पे कर आज हो 2 लक्षन हो 3 लक्षन बे वन तो तुम चीज द्रजर कम गसन हर वरी द्रजर बढ़ान तुम कम न्यू मेजर्स ये पे द्रजर कम करने कोशिश करो तुम नबर तुम डीजल पेट्रोल अनान तथ पे कोता तुम टैक्स कर तुम दालन पे करो टैक्स तुम करो ददस पे टैक्स तुम करो पनीरस पे टैक्स तुम करो तमलस पे तुम त्रो क्या चीज टैक्स वराई मगर तम पे बावजूद तुहज अकानमी गई ना ठीक कहें तुहद बहुत वन अंबरदार सबस वक्त यी तुम वन लुक पाने तुहज पॉलिसी तुम हर चीज आउटसोर्स कर नौजवान वनकस सड़कन पे हर तरह से हर मामलस अंदर फेस कर मगर दपान ठीक बजट आव यम मेजर्स यम ना मटीरियलाइज गसन कह वनकस क्राइसिस ये कि द्रजर तूफानुक हर इंसान सफर कर पे दपान दुत राशन मे बासान कंस डिमांड कर्म कि तुम दिव राशन फ्री हाँ अलबत्ता वीकर सेक्शन तिमन राशन सो जरूरत बहुत दपान राशन सस्त कर जरूरत कि राशन फ्री दिन जरूरत बहुत वन कि कह चीज ग फ्री दिन हर कस चीजस ग कास्ट गसन मगर द्रजर ग कम गसन द्रजर कम कर कहें अच्छा द्रजर ये कम गो न लुक वनकस त्राई कर
अंबारदार साहब जवाब दियो ना बुनियादी मामले कि इंडिविजुअल परचेजिंग कैपेसिटी गशा बढ़े कि ना बुनियादी मामले कि अकिस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी अराउंड ये कत करान सोन नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन यूजन एग्रीकल्चर सेक्टर कत कि इन पता कि ये लट आव 2.4 लाख करोड़ 2.4 लाख करोड़ बजट आमुत थावने एग्रीकल्चर सेक्टरस मज तथ मज वोन मे कि 3 लक्षन तामत मार्जिनल तो स्मॉल फार्मर तिमन ये 3 लक्षन हूं लोन दिन ये 2% बेसिकली तिमन सब्सिडी आए 7% इंटरेस्ट वो मुल्क तुम चलावन अवाम तुम चलावन दोनों चीज बैलेंस चलावन नंबर 1 नंबर 2 पता कि पत्म लटे हिंदुस्तान मज प्रधानमंत्री आवास योजना बने कथन गरीबन कथन लक्षन गरीबन आव फ्री मकान दिन कम कीमतस पे मकान दिन वुचान कि रूरल डेवलपमेंट अगर ये लटे 1.45 करोड़ लक्ष करोड़ अगर बजट आव थावने रूरल इंडिया किस पे ग्रो रूरल इंडिया किस पे कम्पीट अर्बन एरिया माइग्रेशन इलीट माइग्रेशन इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन तम कित पे सस्टेनेबल ग्रोथ कित पे रूरल एरिया मज खड़ा कर बाकी लूकन हज परचेजिंग कैपेसिटी खड़ा कर ज्यादा बनाने खतर इंसेंटिव्स दिन वन कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स अगर तिमन 8 लाख रुपये इनकम एनुअली क्या दिन तम टैक्स क्या 8 लक्षन पे अगर टैक्स तिमन टैक्स दिन वुचन कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर सो मंथली इनकम तम स्लैब किस एरिया मज तेल तमिस टैक्स दिन अगर ना स्लैबस मज तमिस को टैक्स क्या तमिस नेचुरली सो माइक्रो एंटरप्रेन्योर या मैक्रो एंटरप्रेन्योर तमिस इकोनॉमी तम मेंटेनेंस चार्टर अकाउंटेंट कर सो चार्टर अकाउंटेंट कत तमिस गाइड कि इनकम टैक्स किस स्लैबस मज होलिस्टिकली वुचन हिंदुस्तान ओवरऑल चैलेंजेस बॉर्डर चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस चैलेंजेस दुनिया रिश्ते थावन तथ मज नेगेट करो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हसा काफी वो हाईवेज आज बनान तमिक फायदे कमिस गसान मल्टीपल एरिया हाईवेज बना वन जम्मू कश्मीर हाईवे या बन वाजन अल्टरनेट हाईवे खड़ा गसान रेलवे ट्रैक खड़ा गसान तो सवाल अमुक बेनिफिट हिंदुस्तान अवाम से क्या पॉसिबल आज ये मुल्कस मज ये बड़िस मुल्कस मज 130 करोड़ खुद ज्यादा आबादी कि इकोनॉमी क्या है कि एक्सी स्टेट्स मज जनरेट तीजा गछित कि सो तन लोकन खतर सफिशिएंट इंटरडिपेंडेंट स्टेटन मज तो इंटर कंट्री रिलेशनशिप्स तम खतर बोड़ मौजू पे करो बे कत मगर वक्त की कमी वस हेन वक्त इजाजत दिवान कि पकनो बहस ब्रो तो बह कर त्रेशवन मेहमान सठा शुक्रिया सुरेंद्र अंबारदार साहब तुंद शुक्रिया शेख बशीर साहब तुंद शुक्रिया फिरदौस नबी साहब तुंद शुक्रिया तो अत वोत अजक प्रोग्राम वक्त अंत दोमिस प्रोग्रामस मज करो बे कुन मौजूस पे तो बे मुलाकात दियो इजाजत आदाब News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। सबसे पहले हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में की संसाधनों और खर्चों के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश। बहुत लंबे समय के बाद आयकर स्लैब में बदलाव किया गया। वित्त मंत्री ने पेश किया आम बजट। कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को माना चमकता हुआ सितारा। सरकार ने दी इनकम टैक्स में छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कर दी गई 7 लाख। पीएम मोदी ने बजट को बताया वंचितों को वरीयता देने वाला बजट। कहा, विकसित भारत का सपना होगा पूरा। जम्मू कश्मीर के लिए दिए जाएंगे 35,581 करोड़ .44 रुपए। नहीं की गई कोई बढ़ोतरी। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास ने बजट की तारीफ की। बोले, आत्मनिर्भर, सशक्त, समर्थ भारत के सफल सफर का हमसफर है बजट। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, यह बजट नहीं इलेक्शन स्पीच है। शशि थरूर ने कहा, बजट में बेरोजगारी, महंगाई की नहीं की गई बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बजट में उन्होंने संसाधनों और के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर आम जनता, खासकर मिडिल क्लास के लिए टैक्स के नियमों में कुछ छूट दी गई है। देश डायरेक्ट टैक्स के नियमों के आसान होने का इंतजार कर रहा था और सरकार ने इस बजट के जरिए ऐसा कर दिखाया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को हमारी सरकार संतुलित करने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए भी प्रयास लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर को बड़ा दर्जा देने के जरिए उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक ऐसा बजट है जो पूरी तरह संतुलित है। हम बिना किसी कर छूट के नई टैक्स व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हमारा फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर स्लैब में बदलाव से मध्यम वर्ग को लाभ होगा। We are looking at also improving the
industrialization of this country, where people will be trained for Industrial Revolution 4.0, which means they're going to be trained for AI, IoT, using Web3 in other words. So training manpower to ready themselves for industries which are rapidly becoming industrialized in the Web3 context. Then digital economy, unleashing the digital power of India in various walks of life, setting up an artificial intelligence research center, center for excellence. So all these are in part A. There's a lot of increase in the agriculture credit availability, 20 lakhs being made available for agriculture credit. Also a sub-scheme under the PM Matsya Sampada Yojana, making sure that people living in the coastal areas are going to benefit from it, fishermen are going to benefit from it. Now, if largely the Part A has looked at these, Part B has aimed at rationalizing the customs duties, also making sure personal income tax, after a very long time, has had substantial changes which will benefit the middle class. And also because this country has been waiting for direct taxation to be simplified, also waiting for direct taxation to be a lot more easy in compliance, and therefore the new taxation regime that we brought in for direct taxation 2-3 years ago has now got greater incentives, greater attraction, so that people can unhesitatingly move from the old to the new. Of course, we are not compelling anybody. Those who want to remain in old can still remain there for enough justifications that they can have. But the new one obviously is now attractive because it gives greater rebate. It also provides for a simplified and smaller slabs, lower rates of taxation, and also slabs which are nicely broken down. So with all this, I think the budget, I have not gone into specifics, but I thought as an opening remark, this much will be sufficient to say this is a budget which is beautifully balanced, both growth considerations, because the capital investment has never before seen double-digit investment announcements. 10 lakh crore, which includes 1.3 lakh crores being given to states, is going to give a big leg up for capital investment from government. मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर, सशक्त, समर्थ भारत के सफल सफर का हमसफर है। नकवी ने बजट को किसानों के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का यह नतीजा है कि आज देश तमाम संकटों के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। आज एक तरफ तो दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी का दौर है, दूसरी तरफ भारत बैशिंग ब्रिगेड की बकवास बहादुरी चल रही है। पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ता हुआ और बकवास बहादुरी को परास्त करता हुआ देश के विकास, देश के समावेशी विकास, देश के सर्वस्पर्शी विकास, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत और खलिहान के सरोकार को समर्पित ये बजट है। ये बजट ही नहीं है बल्कि देश के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का गजट है और नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का ये नतीजा है कि आज देश तमाम तरह के संकटों और कंटकों के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाए वो लोग जो लोग किए चाहते थे। जम्मू से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुगल किशोर ने आम बजट को सराहनीय बताते हुए कहा कि इस बजट में सबका ख्याल रखा गया है। जब से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तभी से आत्मनिर्भर भारत की ओर देश को ले जाने का लगातार प्रयास है। जुगल किशोर ने कहा कि एमएसपी पर जिस तरह आपत्ति जताई जा रही है, एमएसपी कम नहीं की गई है। किसानों को पहले ही सम्मानित दी गई है कि मुझे एक अच्छा बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश के लिए बजट पेश किया। सभी को उम्मीदें थी और हर किसी को कुछ न कुछ मिला है। ज्यादा बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जम्मू से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी। सर, जिस तरीके से वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को?
देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट आज पेश किया है, सराहनीय बजट है। जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। कारण ये है कि देखिए, इस बजट से ये मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत से 4 पैसे कमाते हैं, वो भी खुश हैं, और उसके अलावा गांव, गरीब, किसान और ये जो कर्मचारी लोग हैं, ये भी खुश हैं, क्योंकि स्लैब भी बढ़ा दी गई है और बोझ भी किसी पर नहीं डाला है। और इसके साथ साथ ही मुझे तो खुशी इस बात की भी है कि भाई जम्मू कश्मीर के लिए भी इन्होंने बजट जो है वो बढ़ाया है। डिटेल तो अब आएगी, लेकिन पिछली बार से काफ़ी बजट जो है वो बढ़ा है। अपने क्षेत्र क्या और भी देश भर से जो लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, हमें भी जो फ़ोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ही सराहनीय बजट जो है वो पेश किया गया है। हर एक को राहत जो है वो वित्त मंत्री जी ने दी है। अगर देखें तो जो कर्मचारी हैं, मुलाजमत पेशा लोग हैं, उनके लिए बजट में जो स्लैब था वो 5 लाख से 7 लाख रुपए किया गया। इसी के साथ साथ कई जो चीज़ें हैं, जो चुनिंदा चीज़ें हैं, उन पर टैक्स को घटाया गया है। तो सरकार की किस तरीके से कोशिश है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी की बड़ी दूरदृष्टि सोच है। वो 50 साल आगे की सोच रहे हैं। आने वाले 25 साल के बाद हमारा देश कैसा होगा। आपने देखा होगा कि भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो 75 वर्ष आज़ादी के पूर्व, वो तो कई योजनाओं को उनका लोकार्पण किया गया, देश को समर्पित किया गया। लेकिन आने वाले 25 साल हैं, उसे भी प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का नाम दिया है। तो आने वाले 25 साल में भारत देश कैसा होगा, उस पर भी विचार विमर्श करते हुए आज निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है। क्या आप इसी कड़ी में कैसा है ये जो कौशल विकास की जो योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 3 सालों तक 47 लाख युवाओं को जो भत्ता देने की बात की गई है, जो ट्रेनिंग की बात की है, डिजिटल लाइब्रेरी की बात है, कि नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात है 157। तो क्या आत्मनिर्भर और उन्नत भारत, विकसित भारत का सपना साकार हो पाएगा? उन्होंने आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर दिया है। भारत देश आत्मनिर्भर बने, भारत के नागरिक आत्मनिर्भर बने, हम किसी पर निर्भर ना रहें, उस ओर वो कदम के साथ कदम आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई हमारे जो नौजवान हैं, पढ़ाई में भी खाली पढ़ाई ही ना करें, पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई स्किल उनके पास हो, हुनर कोई उनके पास हो, कोई ना कोई, डोगरी में हमारे कहते हैं चज कोई ना कोई हो, मतलब कुछ ना कुछ उनके पास अपना हाथों से किया हुआ काम करने वाला हुनर होना चाहिए। तो उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उस हुनर को बढ़ाने के लिए कर्मयोगी हो, जो एक योजना उन्होंने बनाई, और उसके बाद फिर स्किल के नाते मतलब देश का हर एक नागरिक, नौजवान जो है वो कुछ ना कुछ सीखे, ताकि वो अपने पांव पर खड़ा हो सके और वो किसी पर निर्भर ना रहे। उसके लिए उन्होंने दिल खोलकर योगदान दिया है। ये बहुत ही सराहनीय बात है। विपक्ष की तरफ से एक आलोचना की जा रही है, पर हमारे वित्त मंत्री की तरफ से 11 करोड़ किसानों के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए तो रखे गए, लेकिन एमएसपी का ऐलान नहीं हुआ, और जो ग्रामीण जीडीपी है उसको लेकर के बड़ी योजना का ऐलान नहीं हुआ, इस तरह की आलोचना भी है। पहले दिन से ही केंद्र सरकार जब से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, किसानों की आमदनी दोगुना हो उसके लिए प्रयासरत है। इससे पहले आपने देखा होगा किसानों की कोई सुध बुद्धि ही नहीं लेता था, नौजवानों की कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन किसानों को लेकर विशेष तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नहीं कई किस्म की योजनाएं जो है वो चलाई हैं। चाहे वो किसान निधि की बात करो, चाहे वो फसल बीमा योजना की बात करो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करो, और अब जाकर इसमें भी और इजाफा उन्होंने किया है। तो एमएसपी घटाने की कहीं बात नहीं हुई, और एमएसपी की जो बात है वो कंटिन्यू है, उसमें वो एक प्रक्रिया है, वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन किसानों में भी एक खुशी की लहर है कि भाई इस बजट में जो भी सीतारमण जी ने पेश किया वो देश हित में है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखिए, साफ तौर पर जुगल किशोर जी का कहना है कि जो बजट आया है ये साफ तौर पर बहुत ही सराहनीय है और सभी के लिए कुछ है, किसान खुश हैं। हालांकि एमएसपी पर उन्होंने साफ तौर पर कहा एमएसपी घटाने की बात नहीं की गई है, भले ही आलोचना हो, लेकिन सरकार सबका ध्यान रख रही है और ये बजट जो है बहुत अच्छा है।
कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को विधानसभा चुनावों से जोड़कर बताया है। उन्होंने कहा कि चुनावों को देखते हुए बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट नहीं इलेक्शन स्पीच है। उनकी जो भी बातें उन्होंने बाहर कही हैं वैसे जुमले इस बजट में डालकर इसका पुनर्चार किया है। देखिए, ये तो बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं और उनकी जो जो बातें बाहर उन्होंने कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। और दूसरी चीज, बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। और जो आज अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की बात उन्होंने नहीं कही। हालांकि पहले तो उन्होंने ही कहा था कि हमने हर साल 2 करोड़ नौकरियां हमारे युवाओं को देंगे। तो उनके 18 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? उसके लिए कौन सा बजट है? तीसरा, जो सरकारी वैकेंसीज है वो भरने के लिए भी उन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा। और जो 30 लाख वैकेंसीज भरना है उसके लिए तो बजट का प्राविधान होना चाहिए, वो भी इसमें नहीं है। उसके अलावा गरीबों के लिए जो हमेशा पहले से आता था, उनको जरा नरेगा के लिए जरा वो बहुत ही पॉपुलर स्कीम रहने की वजह से रूरल के हमारे किसान मजदूर को उसका लाभ होता है। उसके लिए उन्होंने इसको बहुत अलग दृष्टि से देखा था। लेकिन आज के बजट में पहले जो 90,000 करोड़ था, 90,000 करोड़, उसको घटाकर उन्होंने 60,000 करोड़ कर दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आम बजट की तारीफ की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है, सबको कुछ न कुछ दिया गया है। बजट है और उसमें खास क्या है? इलामत मिडिल क्लास को भी मदद है। अरे भैया फोटो बाद में तरफ से कोई ना कुछ दिया गया है। फिर उम्मीद है कि इलेक्शन और कुछ खास हम बजट के बारे में बताना चाहेंगे। मैं कहूँगा मुबारक हो इसको। 1.5 घंटा हमने अच्छी तरह से सुना और अब हम इस पर बात करेंगे जब मौका आएगा बोलने का।
उस वक्त हमारी बात सुनेंगे आप कि हम बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। ऐसे आपके ओपिनियन में कितना नंबर देंगे बजट को? मैं नंबर नहीं जानता, मुझे नंबर पता ही नहीं, नंबर होती क्या चीज़ है मैं नहीं जानता। तो उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही अनंतनाग से सांसद हसनैन मसूदी ने आम बजट को एक मामूली बजट बताया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए हसनैन मसूदी ने कहा कि कुछ चीजें अच्छी हैं, जैसे टैक्स स्लैब में 7 लाख तक का किया गया है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर के फ्रूट सेक्टर की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था, उस पर बात नहीं है। हम इसको अभी और डिटेल में देखेंगे। हसनैन मसूदी ने कहा कि कोई बड़ा फैसला बजट में नहीं है, चुनाव को देखते हुए कुछ घोषणाएं की गई हैं। बजट को सरकार अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट बता रही है, जबकि विपक्ष कह रहा है बजट में ऐसा कुछ खास नहीं है। हमारे साथ ज्यादा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हसनैन मसूदी साहब। सर, आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, तमाम तरह के चैलेंजेस का सामना जम्मू कश्मीर करता है, तो ओवरऑल बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, तो एक रन ऑफ द मिल बजट है, एक आम किस्म का बजट है, लेकिन कहीं कहीं पर राहत दिखती है मिडिल क्लास के लिए। जैसे कि अभी ये रिबेट का जो रकम है वो बढ़ाएगी 7 लाख तक, उसका मतलब है 7 लाख तक जिसकी आमदन होगी तो उसको कोई ज़ीरो टैक्स देना होगा। इसी तरह स्लैब्स में कुछ मुझे लगता है कुछ चेंज की गई है। पहले तो 5 लाख से के बाद ही 20% का लग जाता था, अब तो वो 2 और स्लैब्स बढ़ा दिए हैं, तो उस तरीके से कुछ राहत है इसमें मिडिल क्लास के लिए। लेकिन हम कहें कि इंस्पायरिंग बजट है, बहुत ही बड़े जरूरतमंदाना फैसले किए गए हैं, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। सरकार तो ये कह रही है कि हमने युवाओं का ख्याल रखा, किसानों का ख्याल रखा, हमने जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनकी बात की है, डिजिटल लाइब्रेरी की बात की। सरकार तो बहुत कुछ बता रही है। नहीं, देखिए बात ये है कि वो तो ये आप जानते हैं कि इलेक्शन से पहले वाला बजट है, तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म में इन्होंने कुछ अपना जो भी उनका स्पीच रहा है उसमें कुछ निशानदेही की गई है कि लॉन्ग टर्म में क्या क्या करना चाहेंगे। जैसे कोस्टल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए कहा है, या इसी तरह जैसे आप कह रहे थे डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए कहा था, युवाओं के लिए कहा गया है, विमेन के लिए कहेगा, उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए किया गया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात है। हम अभी जो आज का जो बजट है उस बजट में कोई ऐसी चीज़ दिखनी है जो बहुत ही जरूरतमंदाना। हाँ, ये है कि अगले 3 साल के लिए कुछ बातें कही गई, अगले 5 साल के लिए कुछ बातें कही गई, तो जाहिर सी बात है इस नज़र आने वाले चुनाव पर है और वो उसको थ्रस्ट एरिया बनाया हुआ है। आपको क्या उम्मीदें थी, आपके लोगों को, भारत के आम आदमी को क्या उम्मीदें थी जो पूरी होती हुई नहीं दिख रही? देखिए, नहीं आगे अब देखिए जब हम विश्लेषण करेंगे, जब हम तजिया करेंगे बजट का, अभी तो जो हार्ड फैक्ट्स है अभी ये आया है कि 24 लाख करोड़ का है जी, जो वहाँ से रिसिप्ट्स हैं जो वसूली है, तो 41 लाख करोड़ के जो बाकी आमदन के को सबमिट करके 41 लाख करोड़ की कोई खर्चा वगैरह है, तो 6.4 पर सीमित किया गया है जो हमारा डेफिसिट है जीडीपी के। तो जब इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, जो एनालिस्ट होगा तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि किस सेक्टर के लिए क्या क्या किया गया है। लेकिन अभी तक जो मैप आउट उन्होंने किया है, उन्होंने एक आइडिया दिया है कि लॉन्ग टर्म में कभी कभी सरप्राइजिंगली 5 साल का क्या है, 5 साल में क्या करने वाले हैं, 3 साल में क्या करने वाले हैं, जबकि आमतौर पर ये एक साल की मुद्दत है। तो बहरहाल ये अपना उनका अपना एक ऑब्जेक्ट है, उनकी अपनी एक हदफ मुकर्रर करने का एक तरीका है। लेकिन किसानों पर ज़्यादा होना चाहिए था। मुझे लगता है किसान जो एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर मुझे लगता है कि किसानों के जो वेलफेयर है उस वेलफेयर पर थोड़ा सा ज़्यादा बल होना चाहिए था। अब मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, सबसे बड़ा चैलेंज हमारी मेवा इंडस्ट्री को है, और आप जानते हैं कि मेवा इंडस्ट्री हमारी रीढ़ की हड्डी है। मैं मिला था जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे कहा था, मैंने कहा था उनको कोई रिलीफ आप इसके लिए पैकेज दे दीजिए। तो रिलीफ में मैं चाहता था कि केसी से जो हमारी जो लोन्स हैं वो वे ऑफ के वो माफ़ किए जाएं, और बाकी जो बड़े लोन्स हैं उनमें भी 1 टाइम सेटलमेंट का प्रोविजन बनाया जाए ज़्यादा बेटर टर्म्स पर। तो अब देखते हैं उसमें जब हमारा यूटी का उसमें तफसीलात आ जाएंगी उसमें क्या होगा। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि आमतौर पर मुल्क में किसानों के लिए कोई बड़े जरूरतमंदान कदम होने चाहिए थे, उनका जिक्र होना चाहिए था, और उन वेलफेयर स्कीम्स का अहाता किया जाना चाहिए था। तो इसी तरह MSEs के लिए जो रिफंड की जो स्कीम ले गए आए हैं, जो बंद हो गए हैं, उनके लिए रिफंड स्कीम है, उनके लिए और कुछ राहत उनके लिए है। क्योंकि देखिए ये बैकबोन है, जो हमारा ये जो इंजन होता है, जो डेवलपमेंटल इंजन होता है, जो MSEs, अगर ये ठीक नहीं है तो मतलब हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं है मुल्क की। लेकिन वहाँ पर कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये जो बजट है, आप कुछ चीज़ों का इस्तकबाल भी कर रहे हैं और कुछ चीज़ों की तनकीद भी कर रहे हैं,
कितने नंबर देंगे 10 में से इसको? देखिए, मैं कहूँगा ये एक आम सा एक एवरेज सब बजट है। हाँ, कहीं कहीं पर हमें लगती है थोड़ी राहत लग जाती है, लेकिन वो राहत भी जरूरतमंदाना राहत नहीं है। जैसे मैं चाहता कि रिबेट 10 लाख तक हो। जो आज का रुपये वैल्यू है, जो रुपया का जो बाज़ार में जो इन्फ्लेशन है, या जो बाज़ार में जो बाकी डिप्रेसिंग सेट एटमॉस्फेयर है, मैं चाहता था कि मेरी ये अपेक्षा करता, मेरी उम्मीद थी कि 10 लाख के करीब रिबेट का होगा, नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 7 लाख तक हो गया। और ज़्यादा अच्छी बात है कि जो रेट्स हो गए वो रेट्स कुछ किसी हद तक रैशनलाइज हो जाए, तो मुझे लगता है कि एवरेज में कहूँगा बजट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं, लेकिन फिर भी एक आम बजट मसूदी साहब ने को करार दिया है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर बीआरएस लीडर के कविता ने आम बजट की आलोचना की है। कविता का कहना है कि इस बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई है और तेलंगाना को कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी सरकार की विफलता है। See how much ever the railway budget might increase, it is only given to a few states. Last 2 years we have seen nothing is given to Telangana, nothing is given to few other states as well. So if सबका साथ लेना है, तो whatever budget you have, why is there not an equitable dissemination of funds is a fundamental question. Today they announced they are going to give 109 nursing colleges, but where are they giving the nursing colleges? Only where they gave medical colleges, and in our state they did not even give one medical college, so we are not even getting one nursing college. So if states are picked and chosen, like Gift City in Gujarat, today they are saying up till 2025 they have extended the tax incentives, but what about NIMS of Telangana, what about other cities, other SEZs in various other states, what about their tax incentives? Why are we only looking at few states? Is this a national budget or a budget of only few states? See, I am very happy and very happy that Karnataka Upper Bhadra project received 5,300 crores. But what about the Mission Bhagirath project of Telangana? What about the Kaleshwaram project of Telangana? Niti Aayog is recommended and you don't even give 1 rupee. And what about the pending money? How are you going to give the states the pending money? It is not mentioned anywhere in the budget, and they owe us hundreds of crores. That is not mentioned anywhere. So all in all, there is no direction in this entire budget. There is no concrete plan for the future. Looks like the government believes that they are going to go away in this 1 year. That is why looks like the budget is only focused on announcing certain big bang names. For example, they talk about a lot of green stuff. Like I think 10 pages they are talking about green stuff. That is probably because they want to pacify the G20 partners. But none of the green projects which were announced by this particular government in the last years were successful. So what are the green projects that you are talking about? Why are you going on announcing new schemes when there is no audit of the old schemes? That is all I have to say. The budget ultimately has to give a good direction to the economic growth of the country. If you can't do that, then the budget doesn't make any sense to me. That is why I am categorically saying this particular budget is a mathematical confirmation of Modi government's failure. विपक्षी दलों ने बजट को चुनावी बजट करार देते हुए कहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और इसे घुमा फिराकर पेश किया गया है। तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट इस सरकार का आखिरी बजट है। सिन्हा ने कहा कि सरकार ने पुरानी योजनाओं को ही घुमा फिराकर नए अंदाज में पेश किया है। आपको कहते हैं पूर्णतः संपूर्ण रूप से देखना पड़ेगा पूरे बजट को। इस बजट में आपको देखना पड़ेगा कि आपने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए डीजल का दाम इतना बढ़ा है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा है, डॉलर कहाँ से चला गया, रुपया का दाम कितना गिरा है। इन सारी चीज़ों पे क्या आपने फोकस डाला? इन चीज़ों के लिए कोई बातें बताई हैं आपने? कोई पॉलिसी दी आपने बताया कि देश के ऊपर इतना कर्जा है। अभी 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की बात तो अभी हुई इसी बजट में। इतना टोटल कर्जा है, उस कर्जे को कैसे घटाएंगे, कैसे कम करेंगे, क्या क्या रास्ते होंगे? आपने एक तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए हमारे लिए किया, चलो मैं मानता हूँ उसको, लेकिन साथ ही साथ आपने जो हाईएस्ट स्लैब जो था उसको इतना नीचे कर दिया आपने कि कई लोगों को शक हो गया कि कहीं खास लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं हो रहा है, हम दो हमारे दो के लिए नहीं हो रहा है, हमारे दोस्तों की भाषा में। तो ये बहुत सारी बातें हुई हैं, आपको देखना होगा। आप अपने किसानों को छोड़कर, अपने युवा वर्ग को छोड़कर, अपने बेरोजगारों को छोड़कर आप का साथ ना देते हुए इस तरह नहीं निकल सकते, या सिर्फ पेज पे चर्चा करने से नहीं होगा। लेकिन तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस। सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात। सालाना 7 लाख तक की कमाई पर नहीं लगेगा टैक्स। टैक्स स्लैब भी घटाकर 6 से 5 किए गए। गरीबों को 1 साल और मिलेगा मुफ्त में अनाज। पीएम मोदी ने बजट को बताया वंचितों को वरीयता देने वाला बजट। कहा विकसित भारत का सपना होगा पूरा। आम बजट को सीएम सुक्खू ने बताया रस्म अदायगी वाला। बोले बेरोजगारी के लिए बजट में कुछ भी नहीं। हिमाचल के लिए जरूरी स्पेशल ग्रांट नहीं दिया। बजट पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। बजट में प्रकृति, खेती, रेलवे और पीएम आवास योजना को लेकर हुए ऐलान का हिमाचल को होगा बहुत फायदा। पेश हुआ सबको साथ लेकर चलने वाला बजट। और सुक्खू सरकार से पहले बजट को लेकर सीएम ने विधायकों के साथ की बैठक में हर इलाके की प्राथमिकताओं पर हुआ विचार। उसी हिसाब से तैयार होगा बजट। तो हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आम बजट में हुए बड़े ऐलानों की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया है। इस बार के बजट की सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि 7 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया है, मगर इसमें न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के चलते लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। हम आज
आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करेंगे। मगर पहले देखिए कि टैक्स के अलावा बजट में क्या बड़े ऐलानात किए गए हैं। तो सबसे पहले बजट 2023 में देश में 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे। गरीबों की मुफ्त अनाज की योजना 1 साल बढ़ा दी गई है। स्कूलों के लिए 38,800 टीचर भर्ती होंगे। नए 50 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन होगा। कोविड प्रभावित एमएसएमईज को 95% पूंजी लौटेगी। 5G एप्लीकेशन के लिए 100 लैब का गठन होगा। स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की भर्ती। 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग कराएंगे। गोबर धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ खर्च करेंगे। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे। और अब बात करते हैं बजट में इनकम टैक्स को लेकर हुए सबसे बड़े ऐलान की। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही अब टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं। मगर इन टैक्स स्लैब में आपको 3 लाख से ऊपर की कमाई पर भी टैक्स लगता दिख रहा है, जिससे कंफ्यूजन यह है कि क्या वाकई 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह पूरी रिपोर्ट देखिए। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the साल 2023-24 के बजट से मिडिल क्लास की उम्मीदें उफान पर थी। पीएम मोदी भी मिडिल क्लास की बात करते रहे हैं। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। 2023-24 के बजट ऐलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को राहत तो दी, लेकिन शर्तों के साथ। फाइनेंशियल 23-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. आपको बता दें कि पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरी क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि नौकरी पेशा लोगों को 7,50,000 रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप नौकरी की बजाय बिजनेस से कमाई कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो टैक्स चुकाना होगा। अब आपको बताते हैं कैसे मौजूदा साल और अगले वित्तीय वर्ष में बदल जाएगी आयकर की गणना। आंकड़ों में समझिए, अगर आपकी आय 7 लाख रुपए है तो अभी नए टैक्स सिस्टम में आपको टैक्स और उस पर लगने वाले सेस के साथ कुल 33,800 रुपए टैक्स के तौर पर देने होते हैं। लेकिन अगले साल यानी 2023-24 में नए टैक्स सिस्टम में आपको महज 20,800 का टैक्स देना होगा। यानी आपको कुल 13,000 का सीधा फायदा होगा। अब अगर आपकी आय 10 लाख रुपए है तो नए टैक्स सिस्टम में आपको इस साल टैक्स और सेस समेत 78,000 का टैक्स देना होगा। लेकिन इसी आय के लिए आपको इस बजट ऐलान के बाद 54,600 का टैक्स देना होगा। यानी आपको अगले साल 23,400 का सीधा फायदा होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी आय 12 लाख रुपए है
तो अभी आपको टैक्स और सेस समेत 1,19,600 का टैक्स देना होता है, लेकिन बजट ऐलान के बाद आपको इसी आय पर 85,800 का टैक्स देना होगा। इस तरह एक साल में आपको 33,800 का फायदा होगा। अब बात करते हैं 15 लाख की आय वालों की, जिन्हें मौजूदा साल में टैक्स और सेस समेत 1,95,000 का टैक्स देना है। तो बजट ऐलान के बाद उन्हें 2023-24 में 1,45,600 का टैक्स देना होगा। यानी 15 लाख आयकर वालों को एक साल में 49,400 का फायदा होगा। नए टैक्स सिस्टम के लिए वित्त मंत्री ने नए स्लैब्स का भी ऐलान किया है। उनके लिए अब 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। अब 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 9 लाख तक की आय पर 10% का टैक्स देना होगा। तो 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15% का टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% का टैक्स देना होगा। तो 15 लाख से ज्यादा आय वालों को 25% का टैक्स देना होगा। एक बार फिर से इस बात को समझ लें कि पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। इसके लिए सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया है, यानी बजट में इनकम टैक्स दी गई राहत सिर्फ इसी पर लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक लोन बांटने का लक्ष्य रखा है। वहीं मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, I present the budget for 2020-2024. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी थीं। सबको उम्मीद थी कि इस बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और निचले तबकों का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीदों के अनुरूप सरकार ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर जहां मध्यम वर्ग को राहत दी, वहीं किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. तो आइए जानते हैं कि इस बार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या-क्या घोषणाएं हुई हैं। सरकार ने KCC के जरिए 20 लाख करोड़ तक लोन बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा सरकार ने किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करने का ऐलान किया है, जहां किसानों को उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाने का ऐलान किया है, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना का नाम दिया गया है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। We grow several types of Shri Anna, such as Shri Anna Jowar, Shri Anna Ragi, Shri Anna Bajra, Shri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China and Sama. वहीं इस बार बजट में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material,
for high value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. सरकार ने एक बड़ी घोषणा प्राकृतिक खेती को लेकर भी की है और 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा देश में कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने 2 और ऐलान किए। पहला, कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जोर और दूसरा, किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाने की बात। इसके जरिए 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। तो उधर पीएम मोदी बजट को विकास को गति देने वाला उन्होंने बताया है और कहा है कि इससे हर वर्ग के लोगों का सपना पूरा होगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। कारोबार, रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ। अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। मध्यम एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। पीएम मोदी ने बजट को वंचितों को वरीयता देने वाला बजट बताते हुए तारीफ की है, लेकिन सीएम सुक्खू ने कहा कि बजट में कुछ नहीं है, बजट के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी की गई है। हिमाचल के स्पेशल ग्रांट मिलना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया। जो केंद्रीय बजट आया है, मैं कह सकता हूं कि एक रस्म अदायगी वाला बजट है। उम्मीद बहुत थी कि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, काफी कुछ योजनाएं होती, बेरोजगारी से जुड़ी हुई योजना होती, अनएम्प्लॉयमेंट आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है, उससे संबंधित कोई योजना नहीं है। हिमाचल को या जो और भी डेट राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में सभी डेट राज्य है, कोई हिमाचल प्रदेश ही नहीं है। पंजाब भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, सब राज्य डेट राज्य। अगर सरकार चाहती तो तकरीबन एक
स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है, 5,500 करोड़ रुपया पेंशन वालों का एरियर है 6th पे कमीशन का, और 4,500 करोड़ जो अधिकारी अभी कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं उनका एरियर है, 920 करोड़ रुपए के करीब हमारे डीए की किस्त है। ये तो वो एरियर है जो हमने देना है, हमारी रियलिटीज है। अगर स्पेशल ग्रांट 10,000 करोड़ की हिमाचल को दी होती, लेकिन आज भी ये देख के निराशा लगी कि किसी भी प्रकार का हिमाचल प्रदेश को कोई ज्यादा सहयोग नहीं मिला है। तो वहीं पूर्व सीएम और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सबको साथ लेकर चलने वाला बजट